آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ وہی ہوا جس کی ہم جیسوں کو پوری توقع تھی۔ ٹرمپ نے حسب معمول ترکی میں نیٹو سربراہ اجلاس کی پوری توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ میزبان ترکی کی تعریف، باقی نیٹو اتحادیوں پہ تنقید، اسپین کو تجارتی تعلقات پر نظر ثانی کی دھمکی، اور پھر ایران سے کیے گئے ایم او یو کے بارے میں کہا کہ اب اسے ختم ہی سمجھیں، مجھے تو کوئی امید نہیں ہے۔ جیسے ہم نے کل ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا ویسے ہی آج رات بھی بنا سکتے ہیں۔ ایران کو تیل فروخت کرنے کی جو اجازت دی گئی تھی وہ بھی واپس لی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم ایرانی بندرگاہوں کی دوبارہ ناکہ بندی کر دیں۔ To me, I think it's over. I don't want to deal with them. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. ایران نے کہا کہ جو کہتا ہے وہ خود ہوتا ہے، جھوٹے، پاگل، ٹھیک ہے۔ ٹرمپ کے اس تازہ غصے کا محرک گزشتہ روز عمان کے ساحل کے قریب سے آبنائے ہرمز پار کرنے والے 3 انرجی ٹینکرز پہ ایرانی حملے ہیں، تاکہ جہازوں کو ایران کے منظور شدہ بحری راستے سے گزرنے پہ مجبور کیا جا سکے۔ ان میں سے ایک LNG ٹینکر قطر کا تھا، ایک آئل ٹینکر سعودی تھا اور ایک پہ متحدہ عرب امارات کا تیل لدا ہوا تھا۔ اس ایرانی حملے کے بعد امریکی فضائیہ نے ایرانی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی IRNA کا کہنا ہے کہ بندر عباس اور بوشہر پہ امریکی حملوں کے نتیجے میں 8 ایرانی فوجی بھی جاں بحق ہوئے۔ بدلے میں ایرانیوں نے بحرین اور کویت پہ میزائل اور ڈرون حملے کیے، مگر ٹرمپ کے ڈرامائی اعلانات کے باوجود امریکہ اور ایران کے مابین ثالثوں کے ذریعے پس پردہ رابطے مکمل طور پہ نہیں ٹوٹے ہیں۔ البتہ قطری اور پاکستانی ثالث کل رات سے اب تک ہونے والی وارداتوں اور غسیلے بیانات پہ ضرور سر پکڑے بیٹھے ہوں گے، بالکل ایسے ہی جیسے 2 ضدی بچوں کے سرپرست بار بار چھڑانے کی کوشش میں اپنے دیگر کام بھول کے جٹے رہتے ہیں۔ بین الاقوامی تعلقات کی تجزیہ کار ڈاکٹر سنبل خان سے ہم نے گزشتہ ہفتے اسی موضوع پہ تفصیلی گفتگو کی تھی۔ آج انہیں ایک بار پھر زحمت دی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے پچھلی بار کہا تھا کہ MOU کی جو کمپنی ہے بہت دیر تک نہیں چلے گی، تو کیا پھر یہ اسی طرح چلے گی؟ حملے اور بیک ڈور چینل ساتھ ساتھ باقی ممالک اور ان کی معیشتوں کا مستقبل بے یقینی کے دھاگے سے اسی طرح لٹکتا رہے گا؟ شکریہ، تھینک یو زرار، تھینک یو وسعت صاحب، آپ نے مجھے جلد ہی پروگرام میں دوبارہ دعوت دی ہے۔ آئی ایم ویری ہیپی ٹو بی ہیئر۔ دیکھیے، جیسے اب لاسٹ پروگرام میں آئی تھنک زرار صاحب نے جو پروگرام شروع کیا تھا، ان کا سوال جو مجھ سے وہ یہ تھا کہ دیکھیں یہ پیس ہے کہ پاز ہے۔ میرے خیال میں ہم لوگوں کی، میری بھی انکلوڈیڈ، آپ لوگوں کی بھی رائے یہی تھی کہ یہ پاز ہے، لیکن اتنا چھوٹا پاز ہوگا یہ میرے خیال میں ہمیں بھی توقع نہیں تھی کہ اتنی جلدی یہ پاز جو ہم ہوپ کر رہے تھے ایٹ لیسٹ نومبر تک چلے گا، جب US کے الیکشنز ہیں، سینٹ کے، کانگریس کے الیکشنز ہیں، ان کے پارٹی الیکشنز ہیں، اس وقت تک ضرور چلے گا، لیکن یہ بڑی جلدی ہی جو پاز ہے یہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور جنگ کی طرف ہم واپس جا رہے ہیں۔ آئی تھنک دیکھیں جی ہو کیا رہا ہے، ایک تو ہم نوٹ کریں گے کہ یہ جو ٹینکرز پہ اٹیک ہے اور جو ایران نے بار بار تنبیہ کی بہت سارے ٹینکرز کو، یہ اس جو پورا ہفتہ تھا اسپیشلی جس میں فیونرل کا ہفتہ تھا یا جو US کے نیشنل ڈے تھا 4 جولائی کی ایکٹیویٹی سے پہلے ہو رہا تھا یہ سب کچھ، اور یہ ٹینشنز اسی وقت سے بلڈ اپ ہو چکی ہوئی تھیں، لیکن پھر دونوں فریقین میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کیونکہ ایران میں خمینائی صاحب کا بہت بڑا فیونرل ہے، ان کی تیاری تھی، اور وہاں پہ کچھ 4 جولائی کی جو پریپ ہوتی ہے یا پریپریشنز تھیں US میں وہ چل رہی ہیں، تو یہ اتنے عرصے تک ایک دوسرے کے ساتھ اٹیک نہیں ہوگا۔ سو یہ میرا کہنے کی یہ مراد ہے کہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی تھیں MOU کی جو پرابلم آ رہی تھی، اور وہ جو سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ MOU کا، وہ پوری جنگ کا بھی جو ایشو ہے، اب آ کے ایک طرح سے
स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे ये चीज़ पूरी की पूरी फोकस हो चुकी हुई है। पहले तो जब ये जंग शुरू हुई थी इसके मुहर्रकात फ़र्क थे, वो चाह रहे थे किसी तरह इजराइल और यूएस के ईरान की रिजीम चेंज हो, या वो अपना न्यूक्लियर इशू जो है वो बहुत पुराना निगोशिएट हो रहा है वो गिव अप करें, अपने प्रॉक्सीज गिव अप करें। अब पोस्ट वॉर जो बात चेंज हुई है, फील्ड जो एकदम से चेंज हुई है, उसमें ईरान का जो हाथ भारी नज़र आया है इस जंग के बाद। नुकसान उनका भी बहुत सारा हुआ है, लेकिन जो जंग के बाद उनका एक हाथ भारी पलड़ा भारी नज़र आया वो यही है कंट्रोल ऑफ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, जो हुर्मुज़ आबनाए हुर्मुज़ है उसका कंट्रोल। और उसी चीज़ पे MOU भी डिले होता रहा, लेकिन फाइनली जो आपने भी देखा, हमने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा, उसमें जो लैंग्वेज है MOU की वो 100% ईरान की जो को फेवर करती है, ईरान का जो मौक़िफ़ है उसकी तायीद करती है। उसमें कहीं भी बाहर किसी मुल्क का जिक्र नहीं है जो इस MOU के ऊपर बातचीत होगी। ओमान का जिक्र है, ईरान का जिक्र है, मैनेजमेंट का जिक्र है। तो वो ट्रम्प साहब ने ख़ुद साइन किया, उसमें सारी पूरी हुकूमत शामिल थी US की। उन्होंने बाकी भी अपने जो दूसरे उनके पार्टनर्स हैं उनको भी इस पर कॉन्फिडेंस में लिया और सब ने मिल के ये MOU साइन किया। लेकिन साथ ही हमने देखा कि वो जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का इशू है MOU की साइनिंग के फ़ौरन बाद सामने आ गया और उन्होंने कोशिश करना शुरू की। एक तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक रूट बनाई ओमान के एरिया में, US ने भी बनाई, उनके शिप्स लेके वहाँ से उनको ले जाने की कोशिश करते रहे। मकसद यही नज़र आ रहा है कि किसी तरह जो कंट्रोल है, पोस्ट वॉर जो कंट्रोल आया है ईरान के हाथ में, वो उनके हाथ से उस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का कंट्रोल निकल जाए, जिस पे ईरान बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो चीज़ें आके वहीं पे आके रुक रही हैं। मेरा ख्याल, अपना ये ख्याल है कि जिन वजूहात की वजह से US एडमिनिस्ट्रेशन फोर्स हुई, इज़राइल की मुखालफत के बावजूद फोर्स हुई है MOU को साइन करने के लिए, वो वजूहात अभी तक वहीं पे वहीं हैं। वो उसमें वहाँ पे जो ऑयल प्राइसेस का बढ़ना, जो उसका इम्पैक्ट US की अपनी जो पॉपुलेशन है उस पे आना, अपने जो उनके जो दूसरे पार्टनर्स हैं US के, यूरोप में पार्टनर्स हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। 25% सारा फ्यूल वहाँ से जाता है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के थ्रू गुजरता है। 35% वहाँ पे जो LNG और गैस है उसके थ्रू जाती है, जो वो इन ममालिक में जा रही है। उनका जो प्रेशर आ रहा था वो चीज़ें तो वहीं की वहीं हैं। कुछ बाकी जो रिसोर्सेज थी वॉर फाइटिंग के लिए, मिज़ल्स की भी कमी हमने देखी है कि वो अभी तक है, वो इतनी जल्दी पुर नहीं हो सकती। तो मेरे ख़्याल में जो बातचीत का आपने जिक्र किया है वो चलेगी। पाकिस्तान भी और कतर दोनों इसमें शामिल थे। एक पॉइंट है ज़रा इम्पोर्टेंट देखने का, आई थिंक बहुत बात जो इस जो MOU के अभी जो हालात आए इससे पहले जो थी वो बहुत ये जिक्र होता रहा है कि कतर भी सालिस है, पाकिस्तान भी मीडिएटर है। कतर और पाकिस्तान दोनों मीडिएशन करते हैं। कतर का समहाउ इन दी एंड हमें रोल ज़्यादा नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग ये कहते रहे कि पाकिस्तान तो ज़रा पुश बैक हो चुका है, कतर ने बहुत ज़्यादा एक्टिवली रोल अपने हाथ में ले लिया है। लेकिन देखें, मेरे ख़्याल में ऐसा ये जो अभी जिस तरह अभी ये एकदम से फाइटिंग दोबारा शुरू हुई है उससे तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल उल्टी होती भी नज़र आ रही है। देखिए कतर और सऊदी अरेबिया और इन ममालिक ने, साहिबा सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कतर का आपने जिक्र किया तो मैं इसी पॉइंट पर ज़रा थोड़ा एक्सपैंड करना चाह रहा हूँ कि देखें शायद फुल फ्लेज जंग दोबारा शुरू ना हो, उसके वजूहात आपने हमें बता दिए हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ट्रम्प है। हम ये भी जानते हैं कि ईरान का जो ट्रम्प कार्ड है वो है आबनाए हुर्मुज़। लेकिन अभी जो हुआ है यहाँ पर कतर के LNG टैंकर पर हमला करना, कतर एक सालिस है। कतर ने अपना वफ्द भी भेजा था आयतुल्लाह ख़ामेनेई के जनाजे में। इस वक्त कतर पर इस तरह हमला करना, माना कि ईरान का हाथ भारी है, लेकिन आर दे ओवर प्लेइंग देयर हैंड इस तरह के अटैक्स करके, ये मानते हुए कि बिल्कुल आबनाए हुर्मुज़ पर वो अपना कंट्रोल रखना चाह रहे हैं, लेकिन क्या हर शिप हर क्रॉसिंग पर आपको इस तरह के हिट करने की ज़रूरत है? मतलब ईरान को हिट करने की ज़रूरत है? ये किसी तरह मतलब एक तरह से एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मूव नहीं है आपकी नज़र में? जी, मैं बिल्कुल इसी पॉइंट पे आ रही थी, बिकॉज़ ये आई थिंक एक नुक्ता है जिसको बहुत समझने की ज़रूरत है। देखिए, कतर का भी सालसी रोल है, लेकिन कतर जो है इसमें एक तरह का फ़रीक भी है, इस जंग का फ़रीक भी है। देखिए, पाकिस्तान का भी सालसी रोल है। पाकिस्तान की भी बहुत एनर्जी डिपेंडेंस है, चाइना की बहुत ज़्यादा एनर्जी डिपेंडेंस है, ईरान पे भी है, आबनाए हुर्मुज़ पे है।
हमने तो अभी तक यूएस वाला जो मीडिएटेड, उनकी मिलिट्री मीडिएटेड रूट इस्तेमाल नहीं किया, चाइना ने तो वो रूट इस्तेमाल नहीं किया है। तो कतर और ये जो दूसरी गल्फ कंट्रीज़ हैं वो ये जानते हुए, वो जो ये MOU साइन हुआ इसमें भी शामिल थी। आप भी जानते हैं ओपनली कतर, सऊदी अरेबिया, स्पेशली कतर तो बहुत फोर फ्रंट पे था इस MOU को साइन करने में। लेकिन वो ईरान को इस वक्त जो नज़र आ रहा है कि जो उनकी पावर इस्टेब्लिश की है उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि इससे पहले, जंग से पहले स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे ईरान ने अपनी रिट नहीं इस्टेब्लिश की हुई थी। इट वाज एन ओपन वाटरवे जिसको पूरी दुनिया ग्लोबल उस वाटरवे को इस्तेमाल कर रही थी। जो उन्होंने एक ही चीज़ इससे अचीव की है, इतनी डिस्ट्रक्शन के बाद, इतनी लॉस के बाद, जानी लीडरशिप की लॉस के बाद एक चीज़ अचीव की है, उनके हाथ में सिर्फ ये एक चीज़ है, उसको अट्रिशन के तौर पे कम करना, उस पावर को कम करने में यही गल्फ ममालिक जो हैं, जो उसमें MOU में भी शामिल हैं, जो अब आप अगर MOU के लैंग्वेज में लिखें तो इसकी कहीं पे भी स्पेस नहीं है कि इस तरह की US मिलिट्री की रूट के अंदर, उनके एविएशन, उनकी एयरफोर्स के अंडर प्रोटेक्शन के अंडर ये रूट इस्टेब्लिश होगी। और ईरान ने बहुत दफ़ा ये कहा है कि आप ऐसे ना करें, ये चीज़ हमारी पावर, ये MOU में शामिल नहीं है। तो आप ये, मुझे ये सवाल ये उठता है कि कतर अगर इतना ही न्यूट्रल एक्टर है, सऊदी अरेबिया इतना ही इसमें न्यूट्रल प्लेयर है, तो वो ये अभी तक इस चीज़ को क्यों कर रहे हैं, ये किसकी ईमा पे कर रहे हैं, और ये इसको क्या, इसके क्या फ़वाइद निकलते हैं। सो आई थिंक इस वजह से जो लोग ये कहते थे कि कतर का रोल और पाकिस्तान का रोल एक ही रोल है, वो तो गल्फ से हैं और वो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, यहाँ से आपको डिफ्रेंसिएशन नज़र आ रही है। यहीं पे आपको क्लैरिटी नज़र आ रही है कि क्यों पाकिस्तान अभी भी वो रोल प्ले कर सकता है जो कोई और नहीं प्ले कर सकता। आई थिंक यही हमने पाकिस्तान पर अभी हम आते हैं, लेकिन अभी अगर हम अपना हुर्मुज़ की एक और मैं बात करूँ, बिल्कुल ईरान की ये वाहिद लेवरेज है और वो नहीं चाहते कि उनके हाथ से निकल जाए। लेकिन ऐसे इकोनॉमिक्स में एक लॉ होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, कि अगर आप बार बार वही चीज़ करोगे तो कम और कम फ़ायदे मिलेंगे। तो यहाँ पर एक लिहाज से क्या ईरान के लिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स नहीं अप्लाई हो रहा? आखिरकार हमने ये भी देखा है कि वो जो ईरान को इस्तिस्ना मिला था फ्रॉम ऑयल एक्सपोर्ट सैंक्शंस, उसको भी बंद कर दिया गया और ये एक ज़राए आमदनी होती ईरान के लिए। तो अगर हम एक ज़ाविये से देखें तो शायद ईरान के लिए ये बेहतर होता कि वो अभी एक दो जहाज़ अगर वहाँ से जा भी रहे हैं उनको जाने दो और थोड़ा सा मिड टर्म लॉन्ग टर्म का सोचें, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि ईरान के हक़ में होगा कि अगर बाकायदा दोबारा बमबारी शुरू हो जाए। आपका इस पर क्या ख्याल है? जी, मेरे ख्याल में बिल्कुल हक़ में नहीं होगा। और ईरानी जितना वो अंडर प्रेशर हैं और उनकी आवाम जितनी अंडर प्रेशर रही है, और वो तो हम सभी देख रहे हैं। लेकिन मैं देखें, आपने एक बात की कि वो जो उनको फ़वाइद मिल रहे हैं या जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, उनको इसका रिटर्न क्या मिल रहा है? आप मुझे ये देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो अगर MOU में भी जो देखें, जो चीज़ें वो बहुत लंबी लॉन्ग टर्म प्रोमिसेस हैं, वो हमने पिछली दफ़ा भी डिस्कस किया था कि वो 300 बिलियन का जो उनका जो वो बनेगा, एक फ़ंड बन रहा है उनकी रिकन्स्ट्रक्शन फ़ंड, वो बहुत हवाई चीज़ें हैं, वो बहुत लॉन्ग टर्म चीज़ें, और मुझे उसमें कोई रियलिस्टिक वो कोई प्लान नहीं लग रहा है। दूसरा देखिए, अभी जो मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे जो ऑयल एंड गैस एंड पेट्रोलियम एंड एनर्जी के एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि इससे जो ये जो 2 महीने का आपने जो कहा कि वो ऑयल जो एक्सपोर्ट पे सैंक्शंस है वो US ने हटाए, फ़ौरन हटाए MOU साइन करने के बाद, और वो 2 महीने के लिए उठाए, वो भी आप जानते हैं कि वो सिर्फ 60 डेज़ के लिए उठाए हैं उन्होंने सैंक्शंस, ठीक है। उसका ईरान को कोई खातर ख्वाह फ़ायदा नहीं हो रहा। ये हम नहीं कह रही है, अब जो ग्लोबल इस वक्त जो एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं जो इस चीज़ को वॉच करें, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो ममालिक ने ईरान के साथ एनर्जी की तिजारत बंद कर दी थी उनको, और उन्होंने ऑल्टरनेट रिसोर्सेज ढूंढ ली थी इंपोर्ट की, ठीक है, वो ये देख रहे हैं कि ये तो शॉर्ट टर्म गैप है, 2 महीने बाद अगर ये सैंक्शंस हट जाते हैं, जैसा कि होता रहा है प्रीवियसली, राइट, देयर इज नो गारंटी। यही तो बात है, ट्रस्ट तो जीरो है ना, बिल्कुल ट्रस्ट जीरो। वो कह रहे हैं वो अभी तक उनके साथ कोई डील साइन करने को तैयार नहीं है। जो कुछ ईरान बेच रहा है वो लोअर प्राइस पे ऑन दैट इनफॉर्मल जो इनकी एनर्जी मार्केट है, स्पॉट मार्केट, उसमें बिक रहा है उनका, और वो आगे जाके भी यही बेचेंगे। सो उनको इस वक्त कोई टैंजिबल जिसे कहते हैं इतना ज़्यादा फ़ायदा इसका नहीं मिल रहा कि वो जो एक चीज़ उनके हाथ में आई है ना, बर्ड इन हैंड इज़ बेटर देन 2 birds in the bush,
वो टू इन द बुश उनके हाथ में। और दूसरी बात, ये डिमिनिशिंग रिटर्न नहीं है मेरे ख्याल में। ईरान इसको एक कोई फाइनेंशियल वैल्यू के तौर पे इस्तेमाल करने को नहीं देख रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, वो एक तरह का डिटरेंस देख रहा है इसको लॉन्ग टर्म। वो अपना फ्यूचर, अपनी पीस एंड सिक्योरिटी को, पीस एंड सिक्योरिटी प्रॉस्पेरिटी ऑफ द होल गल्फ के साथ बांधना चाह रहा है। वो ये बावर कराना चाह रहा है गल्फ ममालिक को भी और दुनिया को भी कि हम अगर हम सेल करेंगे या अगर हम फ्लोट करेंगे तो हम इकट्ठे फ्लोट करेंगे, और अगर हम सिंक होते हैं तो हम इकट्ठे सिंक होते हैं। डॉक्टर साहब सॉरी, यहाँ पर हमें छोटा सा तरह का डिटरेंस है, एक तरह का डिटरेंस है। एक वक्फा लेते हैं एंड वील कंटिन्यू। वेलकम बैक। गल्फ़ की दोबारा से बिगड़ती हुई सूरत हाल पे हम डॉक्टर सिम्बिल ख़ान से गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, हमने सब ईरान तुरान की गुफ्तगू कर ली। एक मुल्क है उस पर मुझे बेचारे में बड़ा तरस आता है, थोड़ा सा उस पर भी मैं बात करना चाहूँगा। ओमान GCC का मेंबर भी है, तो GCC के जो भाई हैं उनका भी प्रेशर है। ईरान जो है वो बिल्कुल एक पत्थर पार का हमसाया है और ईरान से उसके रिवायती ताल्लुक़ात हैं। सालिसी में भी उसने माजी में बहुत अहम रोल अदा किया है। ईरान उसे मुसलसल ऑफ़र भी कर रहा है कि भैया ये जो आबना हुर्मुज़ का ये जो एक्चुअल टुकड़ा है, जो झगड़े की वजह है, ये मेरे और तुम्हारे दरमियान है, तो इस पे जो टैक्स वैक्स लगाते हैं तो पैसे आधे आधे कर लेते हैं। तो ईरान के बारे में इंडिकेशन है कि वो कभी आता है कि जी हाँ वो एग्री कर रहे हैं, कोई प्रोटोकॉल बना रहे हैं, फिर आता है कि नहीं बन रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप है जो हर 2.5 हफ्ते के बाद ये ओमान को ख़बरदार करता है कि अगर तूने बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो यू विल बी वाइप्ड आउट लाइक ईरान। अब ये बेचारा मुल्क जो है ये क्या करे? जी, आई थिंक जैसे आपने कहा, ये तो बिल्कुल साफ़ है कि ओमान और बाकी भी जो GCC कंट्रीज़ हैं जिसमें कतर इंक्लूडेड है, वो अंडर बहुत प्रेशर हैं इस वक्त, क्योंकि उनको ऑब्वियसली अपने डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, वॉर का थ्रेट है, मिज़ल्स उनके शहरों पे और उनके जो तनसीबात हैं, मिलिट्री तनसीबात हैं, एयरपोर्टों पे गिर रहे हैं। और हर अभी अगर आगे भी ये जंग फैलती है तो दोबारा वही होगा जो हमने कुछ दिनों में देखा है। और वो ऊपर से लेकिन उनको US का भी बहुत सारा प्रेशर है। सो बात ये है कि उसमें आई थिंक मसला यही आ रहा है कि जो सिचुएशन पहले 40 साल चलती रही है, देखिए ये ममालिक वहीं पे थे, कोई अभी तो ओमान की वो प्लेसमेंट नहीं हुई है ईरान के सामने, या UAE की ये प्लेसमेंट अभी जियोपॉलिटिकली तो ये यहीं पे इनके नेबर्स हैं, एक ही नेबरहुड में थे। और ये जो पूरा एक इंग्रेस रहा है US का, पावर का, इजराइल का इस खित्ते में, जिस तरह वो मिडल ईस्ट को कंट्रोल करते, जब से तो मैं बड़ी हुई हूँ और स्कूल और कॉलेज जाना शुरू किया है, US फुटप्रिंट इन मिडल ईस्ट एक बहुत बड़ी रियलिटी रही है। और ये ममालिक ने उस रियलिटी का, उसमें अपने आप को एडजस्ट करके इसके फ़वाइद भी काफ़ी हासिल किए हैं, बहुत एडवांस्ड हुए हैं, इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, इनकी ऑयल इंडस्ट्रीज, उन्होंने बहुत वेल्दी, बहुत अमीर मुल्कों में शामिल हो चुके हैं डेवलपमेंट में। लेकिन साथ आपने देखा कि इसी जो अम्ब्रेला रही है उसने ईरान को बहुत ही कंटेन करके रखा है। कंटेन करके क्या, बहुत अंडर बहुत प्रेशर हैं। एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक बहुत अमीर मुल्क है, डेमोग्राफिकली उनकी जो बिल्कुल जिस तरह की उनकी पॉपुलेशन है, उनकी जो एजुकेशन है, हर लेवल से वो कंटेन करके रखा है और उन पे इम्पैक्ट इसका बहुत सारा है। मेरे ख्याल में ईरान का भी ये पॉइंट है कि हम लोग सब मिल के इस इम्पैक्ट को शेयर करें, और अगर हम इकट्ठे हो जाएं और किसी तौर पे ये प्रेशर हम ले लें इस वक्त, क्योंकि ईरान पे तो देखें बम्बार्डमेंट हो रही है, उनकी लीडरशिप मारी जा रही है, घरों के अंदर मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं। आई थिंक उनकी तरफ से इस वक्त ओमान के लिए या कतर के लिए या सऊदी अरेबिया के लिए ज़्यादा सिंपैथी नहीं है, ना कुवैत के लिए है, ना बहरीन के लिए है। वो कह रहे हैं हम तो ये फेस कर रहे हैं, अगर आप इस पॉइंट पे हमारे साथ एक ब्रॉडर अपना एक फ्रेमवर्क पे आ जाएं ओमान, और बिकॉज वो उनकी लिटरल एरिया है, वो जो ये उनका वाटरवे बनता है अकॉर्डिंग टू एवरी लीगल फ्रेमवर्क, ये उनके जो हिस्से का समंदर है उसके अंदर हदूद है, उसकी हदूद में आता है। तो हम अगर आप थोड़ा सा इस पर रेजिलियंस दिखा के खड़े हो जाएं तो हम इस चीज़ को
آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو میں انڈرسٹینڈ کر رہی ہوں کہ عمان پہ اس وقت بہت پریشر ہے, لیکن ایران پہ بھی تو پریشر کم نہیں ہے. جو بھی ہے ایک اگریسو وار آف اگریشن ہوئی ہے ان کے اگینسٹ, انہوں نے یہ جنگ شروع نہیں کی تھی اور وہ ایک فیس کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ کہنا کہ ان کو باقیوں کا لحاظ کرنا چاہیے, وہ بھی اس وقت تو آئی تھنک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن میرا خیال ہے کہ شاید اسٹک کے ساتھ تھوڑا کیرٹ کا بھی استعمال کر لے ایران, تو اس میں شاید کوئی حرج نہیں ہے. Having said that, آئی تھنک جی پیچھے کر رہا ہے, پیچھے ہو رہا ہے, پیچھے ہو رہا ہے. بالکل جی. اچھا, اب پچھلی دفعہ میں آپ سے ایک پریڈکشن لی تھی جو ظاہر ہے کہ آپ کے ذہن میں وہ کوئی 2 مہینے کی ٹائم لائن تھی, وہ 1 ہفتے کے اندر کمپلیٹ ہو گئی. 1 ہفتے کے اندر. اور میں جانتا ہوں پریڈکشن فاسٹ ٹریک پہ بس ہر ایک چیز تیزی سے چل رہی ہے نا, اے آئی کا زمانہ ہے, کیا کریں. اگر میں آپ سے ایک اور پریڈکشن لینے کی کوشش کروں, میں جانتا ہوں کہ اس میں بڑے کیویاٹس ہوتے ہیں, بڑے اگر مگر تو ہو ہی جاتی ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ماضی کی طرح یہ بھی 2-3 دن میں شاید تھوڑی سی اور مزید بمباری ہو, لیکن پھر ایک دفعہ پھر قطر کی کوششوں کی وجہ سے یا پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے یا دیگر ممالک کی کوششوں کی وجہ سے یہ ایک بار پھر ٹیبل پر آ جائیں گے, یا دس از ناؤ گوئنگ ٹورڈز اے ہاٹ وار؟ نہیں جی, میرے خیال میں آپ کے ساتھ ہوں. میرے خیال میں ٹیبل پہ واپس آئیں گے. جیسے میں نے بات شروع کی تھی, جن محرکات کی وجہ سے جن محرکات کی وجہ سے انہوں نے جنگ روکی ہے, نہیں تو ایسا کوئی لو لاس تو نہیں ہے ایران کے ساتھ یا اس ملک کے ساتھ یا اس کی لیڈرشپ کے ساتھ یا ان کی عوام کے ساتھ بھی. وہ انہوں نے کر کے دیکھ لیا تھا. دیر آر ان پہ کئی پریشرز ہیں یو ایس پہ, جس کی وجہ سے وہ یہ MOU کے پورے ڈرامے میں آئے. آئی تھنک وہ بیسکلی چاہ رہے ہیں کہ کسی طور پہ پریشر کر کے ایران کو, کہ ان کو ہم نے کئی کیرٹس آفر کی ہیں جس میں سینکشن ریلیف بھی ہے, جس میں وہ فنڈز کا ریلیز بھی ہے, تو وہ کسی طور پہ ان کا جو کنٹرول ہے اسٹریٹ آف ہرمز پہ جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو وہ تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیں, کہ تھوڑی سی ایریا کو وہ کنٹرول کریں, باقی شپس گزریں. ایران اس پہ تیار نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے بہت جلدی بات چیت پہ واپس آئے گی. اچھا, بات چیت کی بات ہوئی. اچھا, یہ تم دو جی ڈاکٹر صاحبہ بھی اور آپ بھی کیرٹ کا بار بار ذکر کر رہے ہیں. یار ایران کو جو کیرٹ دکھائی جا رہی ہے نا, نہیں میں کہہ رہا ہوں اگر ایران ان کو کیرٹ دکھائے, نہیں ابھی تو ایران کو کیرٹ دکھائی گئی ہے نا MOU میں, وہ کیرٹ جو ہے وہ کاغذ پہ بنا کے کلرنگ جیسے بچے نہیں کرتے ویسے دکھائی گئی کہ یہ ہے کیرٹ, اصل میں وہ کیرٹ نہیں ہے. یہ بگز بنی کا کارٹون مجھے یاد ہے ایک پرانا, اس میں یہ آزمایا گیا تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میرے خیال ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بھی یہی بات کی تھی کہ وہ تو ایک فرضی کیرٹ ہے نا, خیالی کیرٹ ہے, خیالی کیرٹ سے اسکول میں بنایا جو ہم اسکول میں بناتے تھے. جی بالکل, اورنج کلر کرتے تھے. دیکھیں وہاں پہ ایران کا جی بولیے بتائیے. اچھا, نہیں میں کہہ رہا تھا کہ اب بات چیت کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر پاکستان میں اب ایک یہ بھی ایک فیلنگ آتی ہے کہ بالکل ہمیں بہت فخر ہے کہ ہم نے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے اور ان سب کو بٹھایا ہے. اسلام آباد ڈائلاگز, اسلام آباد میمورینڈم, ہم جو بھی کہیں, لیکن اب ایک فیلنگ یہ بھی آ رہی ہے کہ ہم تھوڑا سا کیا کہتے ہیں بیزار ہو گئے کہ انہوں نے تو لڑائی بند نہیں کرنی ہے یار, ہمارا اور بھی کام ہے, ہمارے اور بھی کام ملک میں ہمیں لوگوں کو سیدھا ویدھا کرنا ہے, ہم اس کام میں پہ پوری توجہ نہیں دے پا رہے ہیں. آدھے سے زیادہ وقت یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے وہ یہ ہے نا کہ یہ گاہک جو ہے یہ سارے تھان تو کھلوا دے گا, کپڑا ہم سے خریدے گا نہیں. تو اس طرح کی سچویشن میں ہے پاکستان کی ثالثی قیادت. جی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ آبویسلی پریشر تو بہت زیادہ ہے, اسپیشلی اتنا ٹائم کنزیومنگ انرجیز بہت زیادہ آپ اس پہ لگاتے ہیں. لیکن میرے خیال میں جن ریزنز کی وجہ سے پاکستان اس ثالثی میں گھسا تھا وہ ریزن وہیں کے وہیں ہیں. اس کا امپیکٹ پاکستان پہ بہت زیادہ ہے. بالکل وہ ریزنز بھی بالکل چینج نہیں ہوئے. اور دوسرا میں جیسے پہلے بھی کہہ رہی تھی, یہ ثالثی ایسے نہیں ہوتی کہ کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور ہاتھ اونچا کرتا ہے کہ جی میں میڈیٹ کروں گا. یہ ایک آپ کی ایک پوزیشن کرافٹڈ ہوتی ہے جس میں اسپیشلی جب آپ ملکوں کے درمیان میں ثالثی کریں, جیسے میں پاکستان کو دیکھتی ہوں, پاکستان ایک طرح کے انسائڈر میڈیٹر ہے, انسائڈر میڈیشن ہے جس کو دونوں طرف سے پل بھی کیا جاتا ہے اس میڈیشن میں. جی تو یہ اگر جنگ آگے جاتی ہے اس کا بھی بہت زیادہ نقصان ہے, چیزیں اسٹیسس میں رہتی ہیں اس کا بھی امپیکٹ ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان اس ثالثی سے نکل سکتا ہے, نہ پاکستان کو اس ثالثی سے نکلنا چاہیے. بیکاز ہمارے جو بھی اگر فیوچر, اگر فلی جنگ بھی چھڑ جاتی ہے, ہماری انوالومنٹ گلف میں کیسے ختم ہوگی؟ ہم لوگوں نے سعودی عربیہ کے ساتھ سیکیورٹی پیک کیا ہوا ہے, ہم بہت ڈیپلی اس میں پل ان کر جائیں گے. سو ہمارا جو بھی فریم ورک ہے, اور دوسری ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے, دیکھیں جو بھی آپ کو یہ جنگ سے جو بھی اس کا امپیکٹ نظر آ رہا ہے, ایک چیز بہت کلیئر ہے,
यूएस का जो लॉन्ग टर्म एक सिक्योरिटी फुटप्रिंट था, ये जो एक अम्ब्रेला थी, वो टूट रही है। ये पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है, और जो ये उनकी तरफ देखा जाता था कि वो पॉलिसी और दुनिया के हालात को एक तरीके से ले जाते हुए किसी स्टेबिलिटी की तरफ से लेके जाएंगे, वो इमेज जो है यूएस का या इवन वेस्टर्न पूरी वर्ल्ड का, वो ख़त्म हो चुका है। इधर की रीजन की जो ममालिक हैं, जिसमें पाकिस्तान भी, ईरान भी है, गल्फ़ के दूसरे ममालिक हैं, हम टर्की का भी देख रहे हैं, ये इनएविटेबल है कि हमें खुद उठ के अपने रीजन को हर तौर पे स्टेबलाइज करने की कोशिश करनी पड़ेगी। हम तो सुन रहे हैं कि पाकिस्तान अब लिबिया में भी शामिल है किसी तौर पे पीस की तरफ लाने के लिए। वो एक और डिस्कशन है, वो एक अलग डिस्कशन, वो हम कर सकते हैं बाद में। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा वंस अगेन। पता है, हम इसको यूँ भी देख सकते हैं उस वक्त कि एक नई दुनिया पैदा तो हो रही है, और आपको पता है कि लेबर पेन्स भी होते हैं, लेबर पेन बहुत, हाँ, और कभी कभी बड़ा प्रोलॉन्ग लेबर भी होता है। या इसको हम जियोलॉजी की मिसाल भी दे सकते हैं कि जो प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, वो रीएडजस्ट हो रही हैं, और फिर ज़लज़ले तो आते ही हैं ना सर। ज़ाहिर है। या हम ये भी कह सकते हैं कि 1984 में जब वो इंदिरा गांधी का इंतकाल हुआ था और उसके बाद सिखों का जो कत्लेआम हुआ था, तो राजीव गांधी ने शायद कहा था कि किसी ने पूछा कि यार ये इतने जो बेचारे 3000 सिख मार दिए, तो उन्होंने कहा जी जब बड़ा दरख्त गिरता है ज़मीन पे तो ज़मीन हिलती तो है। जो बात, वक्फा ले लें। वेलकम बैक जी। अमेरिका और ईरान की बात तो हो गई, अब थोड़ा सा अपने गिरबान में जानते हैं। आजकल बड़ी मज़ेदार किस्म की कानून साजी हो रही है, या कम से कम कानून साजी करने की कोशिश हो रही है। पहले वो टेलको रेगुलेशन बिल आया, रिफॉर्म बिल आया, वो चले कौमी असम्बली ने पास कर दिया, सेनेट में जाके फंस गया, वो कमेटी के पास है। और फिर सूबा पंजाब में एंटी सोशल बिहेवियर वाला बिल आया, और हम ये रोना रो रहे थे कि यार बिल 8 जुलाई को प्रेजेंट हुआ, स्पीकर साहब तक को नहीं पता, और अगर एक एडवोकेट, नौजवान एडवोकेट अली जावेद दारोगर ने इसके ऊपर डॉन में एक मजमून ना लिखी होती तो ये भी मंजूर हो गया होता। अलबत्ता वो भी मामला फंस गया है। लेकिन अब हमें ये पता लगता है कि 30 अप्रैल को खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली ने 3 कानून पास किए। एक पुराने कानून की थोड़ी मुरम्मत की है यहाँ पर 1988 के कानून में की, और 6 मई को गवर्नर केपी के गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब ने इस पर अपनी दस्तखत कर दी, असेंट कर दिया। ये है केपी प्रोविंशियल असेंबली पावर्स इम्यूनिटी एंड प्रिविलेजेस एक्ट, केपी प्रोविंस स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर पावर इम्यूनिटी एंड प्रिविलेज एक्ट, और केपी प्रोविंस सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स एक्ट। अब नाम से ही आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या है, इसकी तफसील में भी हम जानते हैं। लेकिन पहले ये कहना ज़रूरी है कि हालांकि वैसे तो हम सब जानते हैं कि केपी की जो हुक्मरान जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी ज़्यादा पंती नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। लेकिन जहाँ तक इस बिल की बात है तो ये मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर हुआ है। वैसे तो लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, टॉक शोज़ में आप रोज़ाना देखते हैं, लेकिन जब प्रिविलेज की बात आती है तो प्रिविलेज के परचम तले हम एक हैं। अच्छा, बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं इस बिल में। एक और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये कुछ दिन पहले ही गज़ेट में नोटिफाई हुआ है, तो फिर जो सहाफ़ी हज़रात हैं उनकी नज़र यहाँ पर गई। अब तक ये इस पूरे बिल की जो कॉपी है वो केपी की वेबसाइट पर, असेंबली की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? एक आपको मैं वर्जन बता सकता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले शौकत यूसुफज़ई साहब जो पीटीआई के एक तर्जुमान हैं, वो एक बैठे हुए थे यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि असल में वो जो हमारा जो मोनोग्राम है ना वो अपडेट नहीं हुआ, तो हाँ, जब तक अपडेट नहीं होगा तो हम उसको अपलोड नहीं कर सकते। फिर सब लोग हंसने लग गए, वो खुद भी हंसने लग गए। तो चले, एटलीस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर है, एक अच्छी बात है यहाँ पर। बहरहाल इसमें क्या क्या है, तो अब जाहिर है कि कुछ चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं। अली अकबर साहब जो हमारे पेशावर के ब्यूरो चीफ हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे, उनके पास पूरी बिल की कॉपी भी पड़ी हुई है गालिबन। इसमें जो खैबर पख्तूनख्वा के MPs हैं उनको किसी भी टोल प्लाजा पे टोल देने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ केपी में नहीं पूरे मुल्क में। अच्छा, उसके साथ एक पेशकश की गई है, गुजारिश की गई है कि जी हर MPA को लाइफ टाइम ऑफिशियल पासपोर्ट, हमारा वाला वो हरा पासपोर्ट नहीं, वो जो
ایک نمبر والا نیلا پاسپورٹ ہوتا ہے, بلو پاسپورٹ, بلو پاسپورٹ, وہ ملے گا ان کو بھی نہیں, ان کو صرف ان کو نہیں, ان کی اسپاؤسز کو بھی. اچھا, اب ظاہر ہے کہ ہر ایئرپورٹ کے وی آئی پی لاؤنجز تک رسائی تو چاہیے ہی چاہیے, اور جو اسمبلی کے آئیڈینٹیفیکیشن کارڈز ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایم پی ایز کو تو ملتے ہیں, اب ان کے اسپاؤسز کو بھی ملیں گے, اور ہر قانون نافذ ادارے کرنے والے ادارے کو ان کا احترام بھی کرنا ہوگا. اور پھر ظاہر ہے کلب جانا ہے, کلب تو جانا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے, تو کلب کی ممبرشپ بھی آپ کو انہی داموں پہ ملنی چاہیے جو گورنمنٹ آفیسرز کو ملتی ہیں. ہم نے لاہور جم خانہ کی بات کی تھی, اب وہ پرانی بات ہو گئی ہے. اور پھر ظاہر ہے اور بھی چیزیں ہیں, کچھ سیکیورٹی ریلیٹڈ ہیں, ان کو ہم ابھی جانے دیتے ہیں کہ ٹنٹڈ ونڈوز ہوں یا زیادہ آرمز لائسنسز ہوں, چلیں کوئی بڑی بات نہیں ہے. جو ان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے گی وہ صرف خیبر پختونخوا تک نہیں ہوگی, پورے ملک میں ہوگی, جہاں تک میں نے پڑھا ہے. مزیدار بات جو مجھے جو لگی ہے یہاں پر سیکشن 10 ہے, اور سیکشن 10 میں غالباً یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو اس وقت تک گرفتار نہیں کیا جائے گا, آپ کا مراد ہے کہ اگر آپ ایم پی ہیں کہ خیبر پختونخوا کی, جب تک اسپیکر اجازت نہ دے. اچھا, اب یہ اتنی نئی بات نہیں ہے, پہلے بھی ہوتا تھا کہ جب سیشن ہو رہا ہو نیشنل اسمبلی میں, لیکن وہ ایک محدود مدت کے لیے ہوتا ہے, اس میں اکراس دا بورڈ ہے. تو یہ بھی ایک بڑی مزیدار بات ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ کچھ انتظامیہ کے اوپر بھی آپ کو پاورز دی گئی ہیں کہ ہر ایم پی اے اپنی حلقے میں ایک میٹنگ ہولڈ کر سکتا ہے, اور جتنے بھی ریلیونٹ گورنمنٹ آفیسرز ہیں وہ باؤنڈ ہیں کہ وہ وہاں پر جائیں, نہیں تو ان کے خلاف ایکشن ہو جائے گا. اگین یونینیمسلی پاس ہوئی ہے. اور پھر کچھ ایسی بھی باتیں ہیں جو کچھ پیکا نما لگ رہی ہیں, پیکا نما, بلکہ شاید ایسی ہیں کہ پیکا بھی شرمندہ ہو جائے ان کو دیکھ کے. تو یہ کیا ہیں؟ علی اکبر صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. میں نے کچھ موٹا موٹا تو بتا دیا ہے کہ اس میں کیا ہے, اور کیا مزیدار چیزیں ہیں جو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اس بل کے بارے میں, ان ایکٹس کے بارے میں؟ بل تو نہیں ہے جی. شکریہ سر. کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو بڑے بے رحم لوگ جو ہے وہ تصور کرتے ہیں, لوگوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا جو ہے وہ قتل بھی کرتے ہیں. جیسے کہ اس بل میں ایک ارکان نے یہ بھی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ جی ہماری جو گاڑیاں ہیں اس پہ ایم پی اے کا ٹیگ ہو, نمبر پلیٹ ہو. تو یہ ایک چھوٹی سی خواہش بھی یہ بھی اس بل کے اندر ایکوموڈیٹ کیا گیا ہے. اور میں اگر اس کو سمرائز کروں تو سر, جتنی بھی چھوٹی بڑی خواہشات ہے تو وہ اس بل کے اندر جو ہے ان کو ایکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور سیکشن 10 پہ میں تھوڑا سا وہ کروں گا کہ اس کے اندر یہ بھی اسپیکر صاحب نے کہا ہوا ہے کہ اگر کسی جج کو, کسی ادارے کو کوئی ایم پی اے چاہیے ہو, درکار ہو, تو پہلے اسپیکر صاحب سے ان ریٹن میں رابطہ کریں گے کہ آیا اس ڈیٹ کو جو ہے جو ملزم ہے یا جس کیس میں وانٹیڈ ایم پی اے ہے وہ کہیں اجلاس میں مصروف تو نہیں ہے, کہیں کمیٹی کے اجلاس میں مصروف تو نہیں ہے. اگر اسپیکر صاحب سمجھیں گے کہ وہ فری ہے تو پھر اسی صورت میں وہ اسی پروسیڈنگ میں شرکت کریں گے, چاہے وہ عدالتی ہو یا کسی اور فورم کا ہو. سر, یہ ان سے ایک بہت بڑی آپ یہ کہہ لیں کہ جان بوجھ کے انہوں نے یہ کام کیا یا غلطی کی ہے انہوں نے, کہ انہوں نے اتنے بڑے مراعات پر مبنی مسودہ جو ہے وہ منظور کیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ صحافیوں کے منہ اور ہاتھوں کو بند بھی کر دیا ہے. اس میں اگر میں آپ کو چند چیزیں بتاؤں تو یقیناً یہ ہم نے ماشاء اللہ میں بھی نہیں دیکھے تھے. اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی صحافی جو ہے اسپیکر صاحب کا یہ اختیار ہوگا کہ اس کو جو ہے اسمبلی کاروائی شائع کرنے سے روکے یا کسی خاص مدت تک اس پر پابندی جو ہے وہ لگائے. بصورت دیگر اس پہ 6 ماہ قید اور 10 لاکھ روپے کا جرمانہ جو ہے وہ کیا جائے گا. اور اسی طرح انہوں نے کہا ہوا ہے اس بل کے اندر کہ اگر کوئی صحافی اسمبلی کی کارروائیوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرے گا تو اس پہ 3 سال قید اور 3 لاکھ روپے جرمانہ جو ہے وہ عائد کیا جائے گا. ایک اور جو اسپیکر صاحب نے اپنے آپ کو پاور دیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اسپیکر صاحب پر تنقید کرنے والے صحافی پر 6 ماہ قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ جو ہے وہ عائد کیا جائے گا. توہین اسپیکر. اور تو جی توہین اسپیکر. اور اس کے ساتھ جو کہ ایک پارلیمانی رپورٹر سب یہی سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیسے کیا ہے کہ اگر کوئی تحریک التوا جمع ہوتا ہے اور وہ ٹیبل نہیں ہوتا
तो उसको रिपोर्ट करना भी जुर्म होगा। और इसी तरह अगर कोई कायमा कमेटी है उसकी रिपोर्ट को टेबल नहीं किया जाएगा तो वो भी शाया करना जुर्म तस्वर किया जाएगा और उस पर 1 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। तो इसमें स्पीकर साहब ने बिल्कुल जो एक तरह से जिसको हम मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं वो इख्तियारात हासिल है, तो इस बिल से हमें वही लग रहा है और इस बिल में जो है इन चीज़ों को एकोमोडेट किया गया है। सर, इसमें जो आज की डेवलपमेंट हुई है कल से, क्योंकि जाहिर है कि चीज़ें ऐसी हो रही है जो कि तनकीद की ज़द में है, और आज इस पे जो है वो काबीना का इजलास था और चीफ मिनिस्टर ने जो है इसका नोटिस लिया हुआ है। और जो आज उनकी स्टेटमेंट आई है, उनका ये कहना है कि जो इस बिल में जो चीज़ें आवाम को काबिल कबूल नहीं है या जिन चीज़ों पर सहाफ़ियों को एतराज़ है तो उसका जायज़ा लिया जाए। और स्पीकर को हिदायत की है कि तमाम पार्लिमानी पार्टियों के रहनुमाओं पर मुश्तमिल जो है इजलास बुलाया जाए और जिन शिकों पर आवाम और सहाबियों का एतराज़ है तो उसका लेकिन मैंने सुना है अली अकबर, बल्कि हमने सुना है कि गवर्नर ने इस पे साइन कर दिए हैं और अब ये कानून बन गया है, तो ये कैसे जायज़ा लिया जाएगा? बात समझ में नहीं आ रही। वक्फा लें, उसके बाद जवाब लें। हाँ जी, एक वक्फा लेते हैं अली, फिर आप भी सोचें, समझते हैं और फिर इसका जवाब लेते हैं। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने जो अपने लिए अज़ीमुश्शान मराती क़ानून मंजूर किया है, उस पर हम अली अकबर साहब से बात कर रहे हैं, हमारे पेशावर के ब्यूरो चीफ। अली अकबर साहब, ये जो हमारे मासूम वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो कह रहे हैं कि अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ें हैं तो हम ज़ाहिर है उस पर नज़र सानी कर सकते हैं। तो पहले तो आप ये कंफर्म कीजिए कि क्या गवर्नर ने इस बिल पे साइन कर दिए? अगर साइन कर दिए तो अब ये कानून बन गया है, तो इस पे एक्ट हो गया। तो अब ये वज़ीर आला के इस बात का फिर क्या मतलब हुआ कि जी इस पे नजर सानी हो सकती है? ज़रा समझाएं हमें। जी सर, ये बिल्कुल एक्ट बन गया है और जो गुफ्तगू आज हम इस प्रोग्राम में कर रहे हैं, हमें खदशा है कि कहीं ये जो एक्ट है हम पे इसकी शुरुआत हमसे ना हो जाए। सर, इस हवाले से हमारी सुबह से जो है वो बातचीत जारी है और मुख्तलिफ लोगों से भी हमने बात की है। हुकूमती जो उसका जो टर्मिनोलॉजी उनकी जानिब से यूज़ हो रही है, तो वो रिपील का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि इनको रिपील भी किया जा सकता है और जिन शिकों पे ज़्यादा एतराज़ है तो उसको अमेंड भी किया जा सकता है। तो इस हवाले से आज सीएम से भी हमारी बात हुई, तो वो भी कानूनी मशावरत कर रहे हैं अपने जो उनकी टीम है। तो दोनों सूरतों में इसका तनसीख भी ज़ेर गौर है और जो शिक्के है ज़्यादा ख़तरनाक, तो उसको अमेंड भी किया जा सकता है। चीफ मिनिस्टर साहब को पता था ना कि ये बिल पास हो गया है, ये मतलब एक्ट बन गया है, उनको पता तो होना चाहिए ना, मतलब पहले भी देखा होगा। जी, इन्होंने छुपाने की बड़ी कोशिश की है और तकरीबन 2 महीने तक सभी ने छुपाने की कोशिश की है ना। देखें ना अली अकबर साहब, 30 अप्रैल को ये बिल मंजूर होता है, 6 मई को गवर्नर फैसल करीम कुंडी इस पे साइन कर देते हैं और किसी को नहीं पता। हम अपने आप को बड़ा बाखबर कहते हैं, लेकिन हमें कख पता नहीं है, बल्कि शायद आपको भी, मुझे नहीं पता उस वक्त पता था या नहीं। लेकिन अब मज़े की बात यह है कि अब जो फैसल करीम कुंदी साहब ने साइन के बाद इस बिल को एक्ट बनने के बाद जो बयान दिया है, उससे अंदाज़ा होता है कि उन्होंने भी शायद बिल को अच्छे से नहीं पढ़ा था। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। पीटीआई के चेयरमैन हमें बताएं, पीटीआई के हमारे जो बड़े हैं वो बताएं कि आपने जो अयाशियों का बिल अपने लिए पास किया है, ये आवाम को कितनी सहूलत उससे मिल रही है? अपने लिए तमाम तरह जो है उन्होंने मराहत कहें वो ले लिए और आवाम के लिए कुछ नहीं है। आप मुझे बताएं कि आपके ऊपर भी, मीडिया के ऊपर जो कतगन है वो मतलब ये है कि अब पीटीआई की एक प्रेस रिलीज़ आएगी और वो आप शाया करेंगे, अदरवाइज़ आपको उस पर जो है सज़ा भी हो सकती है और पता नहीं क्या क्या कानून। यानी इससे आपको अली अकबर अंदाज़ा होता है कि गवर्नर ने साइन करते हुए ये बिल पढ़ा होगा। सर, वैसे आपने तो नोटिस किया हुआ है गवर्नर साहब अक्सर बिलों को रोक देते हैं, कई महीने हफ्ते भी लग जाते हैं, फिर जरगे भी किए जाते हैं। तो ये इतना जबरदस्त किस्म का बिल था और इस पे उन्होंने फौरन दस्तखत किया है। सर, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर आप ये देखें, ये वो अपने लिए और आप उसी चीज की मजम्मत भी कर रहे हैं।
सर अपने लिए वो क्या कहते हैं, सेफ पैसेज है क्या, वो ढूंढने की कोशिश कर रहे Safe passage, हैं। हाँ। असल में जो सबसे मुतनाज़ है इसके अंदर एक चीज़ है जो कि वो ऑफिशियल पासपोर्ट है, और सिर्फ मतलब अरकान के लिए नहीं बल्कि उनके बेगमात के जी। लिए भी मुतालबा जो जी। उसमें शामिल है, वो गवर्नर साहब के भाई ने उसमें मतलब जो है वो अमेंडमेंट उसकी वजह से आई है। और मैं आज एक जराए की बात आपको बताऊं, इस पूरे जो एपिसोड में हुई है, जब सीएम को ये मसौदा शुरू में पेश किया गया तो सीएम ने इसकी खुल की मुखालिफत की थी और उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। फिर जो चीज़ें काबीना ने अप्रूव की थी, आज इसको क्लेरिफाई भी कर दिया है सीएम ने कि जो बिल हमने पास किया था उसके अंदर जो है ये चीज़ें इतनी नहीं थी जो कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस में उसमें तजावीज़ आई और उनको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। तो गवर्नर साहब जो है वो मास करने की कोशिश कर रहे हैं, सारे शामिल थे इसके अंदर, जितनी भी सारी जमातें हैं, क्योंकि सबका फायदा हो रहा है, जाहिर है। तो इसमें तो सबने हिस्सा डाला हुआ है। हाँ। और अब मजे की बात यह है कि आज मुस्लिम लीग नून ने इसको जो है वो मुस्तरद किया, और उनके जो बाद में जब वो दिफा कर रहे थे जो हुकूमती वफ्द, तो उनके साथ उनकी खातून रुकन बैठी हुई थी इसके दिफा में, तो सब इसमें शामिल है और आवाम के साथ जो है वो इंतहाई मजाक किया गया है। मैं सर एक बात आपसे शेयर करना चाहूँ कि यहाँ पर इस वक्त गर्मियों में इंतहाई जो मसला है वो लोड शेडिंग का है। 16 घंटे 18 घंटे लोड शेडिंग से आवाम जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, और बड़ी मुश्किलों से खबरें दे दे के सिर्फ एक ही दिन 2 दिन पहले असम्बली में उस पर बहस कराई गई है। बाकी कोई उस पर किसी अवामी नुमाइंदे का ना कोई स्टेटमेंट है, ना एहतजाज है, ना कोई मुतालबा है। और ऐसे में इस तरह के मराहत अपने लिए सामने आते हैं तो यकीनन इससे जो है वो अपोजिशन वाले तो एंजॉय कर लेंगे, लेकिन हुकूमत का इमेज इंतहाई खराब। अच्छा, मजे वो की कहते हैं बात ना कि इतनी गर्मी में इनकलाब कैसे आ सकता है। मज़े की बात है कि गवर्नर इन थ्योरी वफाक का नुमाइंदा होता है, गवर्नर ने इस बिल पे साइन करके उसे एक्ट बना दिया। अब वफाक वाले भी गवर्नर के साथ साथ इस बिल की जो है मुखालफत कर रहे हैं, अहमद करीम कुंडी साहब और ने वो वफाक पासपोर्ट की हुकूमत को शायद अब तक ये नहीं पता चला कि कौमी असम्बली और सेनेट और जजों ने भी अपनी मराहत में अज़ खुद इजाफा कर लिया था। केपी असम्बली ने यकीनन ज़ाहिर है कि कुछ ज़्यादा ही हो गया ये, लेकिन केपी असम्बली भी जो बड़ों ने मिसाल कायम की उन्हीं के नक्शे कदम पे चली है, तो उसने क्या बुरा किया मतलब। हाँ, इसमें एक और जी, बल्कि हमने जो असम्बली का इख्तियार है और जो अवामी जो ताकत, जिस तरह हम कहते हैं कि जी अवामी नुमाइंदों के पास अवामी ताकत है, तो उसका हमने खुल के इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन मसला ये है कि हमने अपने अरकान और उनके अहल-व-अयाल का बंदोबस्त किया हुआ है, बाकी अवाम का उसमें कोई जिक्र नहीं है। दूसरा ये कि सर अब आपको याद होगा कि इनके जो लीडर है इमरान खान, उन्होंने ये जितने भी सरकारी रिहाइश गाहें हैं, सरकारी जो रेस्ट हाउसेज है, सर्कट हाउसेज है, गलियात में भी है, मरी में, जिधर भी है, उन्होंने क्लियरली कहा था कि इनको मतलब जो है टूरिज्म के हवाले कर दे, और इनको एक बिल के जरिए टूरिज्म के हवाले कर भी दिया गया है। और उसके बावजूद जो है इस बिल में ये भी शामिल है कि जहाँ भी जो बिल्डिंग भी सरकारी इमारत होगी वहाँ पर अरकान असम्बली जो है वो जाएंगे और उनको मतलब जो है वो सही एकोमोडेट किया जाएगा और एंजॉय कर सकेंगे जितना चाहे। तो अब अजीब सी चीजें इस बिल के अंदर शामिल अली अकबर, मतलब खान साहब के विजन के मुताबिक। बहुत शुक्रिया। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया है और भी बहुत मुझे मिसरा याद आ रहा है। ये पंजाबी के एक मशहूर शायर हैं, बहुत ही मशहूर शायर है, मेरी बेइज्जती नहीं कीजिएगा, इतने मशहूर शायर है इस वक्त मेरे जहन में नाम नहीं। मैं आपको मिसरा बता देता हूँ कि विचों विचों खाई जा, उत्तों रौला पाई जा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।